predicted कि I have a feeling you will do something to do with glamour. Then I got क्योंकि सास भी गई बहू थी. When I started shooting, my dad was very against it. It was just that chance I wanted. जब मैंने फिल्म्स में ट्राई करना शुरू किया, तब पता चला कि जो टीवी ऑलरेडी कर रहा है, उनको फिल्म्स नहीं मिलती है. That kind of broke my heart, and that's when my struggle in films started. ये स्ट्रगल खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. It's going on. How do you take marriage? Marriage is work for sure. See, it's a gradual process because I married also late. You know, मैं वो young 20s, 30s में मैंने शादी नहीं की थी कि मैं mold हो जाऊंगी. Between 32 to 36 heartbreak या कोई cheating जैसा emotion आया था, you know, where you just felt that how did I even allowed myself to get used? ये जो tattoo है, ये आपकी heartbeat है. हाँ, my heartbeat is for my mother. Yeah. And नीचे आपने 6 stars बनाए हैं. I am just attracted to stars. हम stars scribble करते हैं तो fame is the only goal of our life. हम हमेशा जाने जाएं. 5 एक साथ है और एक अलग है. आप business world में भी बहुत अच्छा करेंगे. मेरा ना इस इंडस्ट्री से मन नहीं भर रहा. I'm not yet done. So we have with us beautiful, lovely and absolutely magnetic Karishma Tanna with us. Thank you so much. Thank you, Dr. And you're so pretty. So are you, I swear. जब आपने इंडस्ट्री ज्वाइन की और आप इस इंडस्ट्री में आई तो लुकिंग एट द वे यू आर, यू सो प्रिटी, यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल फेस एंड आई एम श्योर बचपन से भी लोग हमें बोल देते हैं कि तुम इतनी सुंदर हो एंड यू बीन हियर इन बॉम्बे जस्ट नेक्स्ट डोर टू माय हाउस. यू टोल्ड मी द मोमेंट यू एंटर. यस. So everybody knew that you're going to do this with your height, your face, your personality, your openness, expression. तो आपको कभी लगा कि इतना सब कुछ परफेक्ट है, मेरी लाइफ में सब कुछ डिले क्यों होता है? क्या आपको लगता है लाइफ में डिले होता है? Definitely. When I started, मेरा जो स्टार्ट था करियर का वो बहुत स्मूथ था. मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगी. यू नो व्हेन यू आर एट दैट एज यू आर कन्फ्यूज कि आपको डॉक्टर बनना है या एयर होस्टेस बनना है या बिहाइंड द कैमराज रहना है. मॉडलिंग सोचा नहीं था कभी, या तो एक्टिंग सोचा नहीं था. पर ये जब भी मिरर होता था तो उसके सामने ऐसे मम्मी की साड़ी पहन के थोड़ा सा डांस करना, तो वो सब था मेरे अंदर. बट यू नो एट दैट एज यू डोंट रियलाइज व्हाट यू वांट. तब मेरे जो दादा थे उनके जो रियल ब्रदर थे who has now shifted to Italy, he was a photographer. So he told me that, you know, from the entire Tanna family, I find you very striking. भले आप तब इतने सुंदर नहीं होते हो जब आप छोटे बच्चे होते हो, you know, you get groomed very, हाँ, you're very raw. So he's like, I want to click your raw pictures, you know, when your hair is frizzy and your facial hair. And he's clicked me that and he's like, you're so pretty. And he predicted कि I have a feeling you will do something to do with glamour, you will do something to do with cameras and, you know, shooting. I said, I don't know. And I used to call him Kaka. And I said, I don't know, but let's see. And I remember my raw pictures are still with me. कैसी लगती हैं वो? तब के लिए बहुत सुंदर मुझे लगता है. Very nice and pretty and innocent. उस ज़माने के लिए वो I think perfect था. Then जब कॉलेज में आप आए, जब then I did like little professional photo shoot and all that, और उस वक्त के लिए भी मुझे लगता है बहुत ही ठीक ही था, ऐसे ग्रे लेंसेज पहन के. So I just distributed randomly to whatever numbers I had, because back then you had nobody, you know, you didn't have casting agency. So few little ad agencies, मेरे friends के contacts I just passed on. And that's how I started getting modeling offers. And I thought, I think this is sounding good to me till the time I'm modeling. I don't know whether I want to act or get into proper, you know, heroine zone. Then I got क्योंकि सास भी गई बहू थी. And when I started shooting, my dad was very against it. क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो इतना अच्छा सीरियल था. पर नहीं, हाँ, कैमरा है एंड शूटिंग में लोग कैसे होते हैं, आई डोंट नो. आई वांट यू टू स्टडी फर्दर. पर उस रोल ने आपको पॉपुलैरिटी दी जी. एंड फिर उसके बाद आपको ये लगा कि मैं सीरियल्स में क्यों आई, मुझे तो मूवीज करना चाहिए था. हाँ, मुझे ऐसा लगा, पर क्योंकि यू नो आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. पैसे देखे नहीं थे मैंने, बिकॉज जो मेरे एकता कपूर अच्छे पैसे देती थी. हाँ अच्छे देती थी उस वक्त के लिए. मेरे लिए बहुत बहुत ही ज्यादा थे. आई फेल्ट वाओ, आई एम रिच, यू नो. और आज लगता है कि मुझे कम पैसे दिए गए तब और ज्यादा मांगने चाहिए थे. नहीं, उस जमाने के लिए वो पैसे
इनफ थे। एक चांस देने के लिए भी मुझे लगता है कि नहीं भी दिए होते ना पैसे फॉर कमिंग इन अ बिग शो लाइक क्योंकि सास, मेरे को मैं फ्री में भी कर लेती थी, मुझे चलता था. इट वॉज जस्ट दैट चांस आई वॉन्टेड एंड आई गॉट इन अ वेरी बिग शो एंड देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर टीवी. When I thought, when I became mature, sensible कि अच्छा ये यहाँ ग्रोथ हो गई है, अब मुझे लगता है मुझे एक स्टेप ऊपर लेना चाहिए, फिल्म्स में ट्राई करनी चाहिए. जब मैंने फिल्म्स में ट्राई करना शुरू किया तब पता चला कि जो टीवी ऑलरेडी कर रहा है उनको फिल्म्स नहीं मिलती है. तब समझ में आया इतना करने के बाद. हाँ, और वो टाइम पे वैसा ही था कि इफ़ यू आर अ वेल नोन टीवी पर्सनैलिटी बिकॉज यू आर एक्सपोज्ड ऑन टीवी एंड फैमिली नोज यू एंड ऑल दैट, to come on big screen is a challenge. So that kind of broke my heart. I'm like, oh, I didn't know, because I've always thought from the West कि जितने भी एक्टर्स टीवी कर रहे हैं, पर्सनालिटीज जो भी टीवी शोज कर रहे हैं, वो फिल्म्स भी कर रहे हैं. वो मैंने देखा है इन हॉलीवुड. सो आई थॉट दैट विल बी द सेम गेम हियर, बट इट वाज नॉट. एंड दैट्स व्हेन माय स्ट्रगल इन फिल्म्स स्टार्टेड बेसिकली. और क्या लग रहा है ये स्ट्रगल खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इट्स गोइंग ऑन. आई थिंक पर इतने साल क्योंकि खत्म हो गया दैट शो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी खत्म, दे रीस्टार्टेड एंड आई एम श्योर यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट एनीमोर. सो शो फिर भी वो टीवी वाली इमेज गई नहीं अभी तक. once a TV actor, always a TV actor in our industry for some reason. बहुत टाइम लगता है for any actor unless you do very big films or you become. शाहरुख के साथ तो ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई हुआ. वही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने एक किया था और उसके बाद वो सुपरस्टार बन गए. सो वो इमेज उनकी चेंज हो गई. पर फिर भी जब आप उनकी डिस्क्रिप्शन या कोई बोलता है तो बोलते हैं कि उन्होंने एक टीवी शो किया है पहले, बट इज नॉट नोन एज अ टीवी एक्टर. माइन इज आई डिड, एंड व्हेन आई से टीवी, आई हैवंट डन सास बहू रोल्स. इफ यू सी my career, I haven't done saas bahu roles. I've done guest appearances on TV. I've done reality shows on TV because मुझे पहले से ही वो मन नहीं था कि मैं वो ongoing saga करूँ जहाँ मैं वो ग्लिसरीन लगा के रोऊँ और बहू बनूँ and all that. Because I wanted to know if I'm starting a show, where is the end? I can't keep going on and on and on. It drains me. तो मुझे रियलिटी से याद आया कि आप बिग बॉस पे भी आई हैं. जी, मैंने खतरों के खिलाड़ी भी किया, मैं उसमें विनर थी. So I did couple of reality shows. बिग बॉस का एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब तब भी इतनी हाइप थी जितनी आज है? Frankly, मैंने ना सिर्फ इसलिए किया था because I wanted to challenge myself as an actor. मैं कैसे रहती हूँ उस घर में? मैं कैसे difficult situations में कैसे निखर के आती हूँ. That's it. I have never seen Big Boss. I have not seen my सीजन ऑल्सो. बाहर आकर देखा नहीं आपने? बिल्कुल नहीं देखा है, मुझे देखना ही नहीं है. मुझे वो नेगेटिविटी पसंद ही नहीं आती. दो द शो इज डूइंग वेरी वेल, आई एम श्योर अभी भी कर रहा होगा, पर मेरा इंक्लिनेशन नहीं टू वॉच दोज काइंड ऑफ फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स. तो आप कैसा देखना सिनेमा पसंद करते? व्हाट काइंड ऑफ शोज डू यू लाइक टू सी? कैसा देखना पसंद? आई लाइक थ्रिलर, आई लाइक सेंसिबल सिनेमा, आई लाइक सिचुएशनल कॉमेडी. अभी मैंने फैमिली मैन देखा. आई लव इट. आई लव मनोज बाजपेयी. सो गुड. तो ओटीटी की तरफ कुछ रुझान हो रहा है कि मैं ओटीटी पे कुछ करूं? फिर मैंने बहुत लंबा आई थिंक ब्रेक लिया फ्रॉम टीवी एंड ऑल दैट, एंड देन आई थॉट कि मैं थोड़ा सा अपना इमेज चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल वांट फ्रॉम आवर इंडस्ट्री. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड अप्रोचिंग ओटीटी. थैंक गॉड टू ओटीटी. वरना पहले क्या होता था, या तो थिएटर, टीवी या तो फिल्म्स. बीच में कुछ नहीं था. तो जो भी एक्टर्स या एक्ट्रेसेस होते हैं जिनको चांस की जरूरत होती है, उनके लिए कुछ नहीं था. सो ट्रू. सो थैंक गॉड टू दिस ओटीटी मीडियम कि हमको लगता है हम डिजर्व करते हैं या टैलेंटेड है एंड वी कैन प्रूव आवरसेल्व्स मोर देन टीवी. हमको वो चांस मिला. It just changed my perspective. It put me in that actor bracket category, which I love now. So I'm happy. Though the struggle is still there, you know, till the time you are, Mr. Bachchan used to say that I'm still struggling to get a role after being in the industry for so long. Every day he's learning. Every day he's wanting to do new work. So if he is inspired and if he's so ambitious, then why are we not? So I am okay to sit at home, wait for the right work to come. I'm okay to struggle. That struggle period is also beautiful, I feel.
Yes, you get your negative thoughts sometimes that, Arey, what am I doing at home? Why am I sitting at home? Why am I not in front of the camera? I deserve it. But then you have to just pick yourself up. आपने कभी तेलुगु मूवीज की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया? कोई दे तो नहीं, खुद भी तो देना पड़ता है ना. मतलब मैंने ऐसे ट्राई किया है, बट ये मैं बहुत लंबी हूँ, उनको थोड़ी सी हैवियर एंड शॉर्टर लड़कियाँ तब. ऐसा क्यों? शॉर्टर से क्या मतलब? आई डोंट नो. तब मैं तब की बात कर रही हूँ, 15 साल पहले की बात कर रही हूँ, जहाँ दे वांटेड लाइक अ टिपिकल एक्ट्रेसेस फॉर साउथ. बट देन उसके बाद मेरा मन ही नहीं लगा, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया आफ्टर दैट. मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा आपका. एक बार आपको ज़रूर टॉलीवुड की तरफ नज़र करना चाहिए. द वर्ल्ड इज़ लुकिंग टूवर्ड्स टॉलीवुड. इतनी क्रिएटिविटी कोविड समय से उस दिशा से निकल कर आई, विच अमेज्ड एवरीवन. आई नो, एंड द कंटेंट इज सो सो गुड. हाउ डू यू फील? शादी से पहले और शादी के बाद में क्या फ़र्क है? कुछ फ्रीडम रुकती है? I don't think so. It depends on how you are as a personality and how you take marriage, you know. Yes, How marriage. do you take marriage? Marriage is work for sure, but marriage is also, I feel, जब मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं भी थी, तब मैंने सोचा था जो भी मेरा पार्टनर होगा, मुझे वो टिपिकल हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप नहीं रखना है, मुझे एक फ्रेंडशिप रखनी है. सो भगवान जो भी मेरे लाइफ में आएगा, प्लीज़ एक बड़ी जैसा रिलेशनशिप हो, जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना हो या बहुत ज़्यादा बंधन ना हो. जस्ट लिव एंड लेट लिव काइंड ऑफ रिलेशनशिप. Plus also you need to respect each other and listen to each other, spend time. All of that quality should be there, where you don't feel that, oh, now you're married, your life has changed 360. That I don't like. तो आपके इन-लॉ साथ रहते? मेरी मदर इन लॉ है एंड मदर इन लॉ साथ में रहते हैं हमारे. तो फिर जैसा आपको अपनी मदर के साथ फील होता था, वैसे ही मदर इन लॉ के साथ भी फील होता है? See, it's a gradual process because I married also late. You know, मैं वो यंग 20s 30s में मैंने शादी नहीं की थी कि मैं मोल्ड हो जाऊंगी या तो स्मूथ हो जाएगा सब कुछ. बिकॉज आई ऑलवेज लिव्ड विद माई मदर एंड आई लॉस्ट माई डैड एट अ अर्ली एज. So it was me and my mom all the time. So after marriage, when I had to see my mother-in-law as a mother, it was a slow process, but it was a beautiful process. Luckily, she is exactly like me, her personality. She loves to give freedom. She loves to take space. She is a working woman. She has a mind of her own. So it all matched. She's not that typical mother-in-law who'll need बहू का time or who'll think that अरे ये ऐसा क्यों है, खाने के बारे में क्यों नहीं सोचा, इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, घर के बारे में क्यों नहीं सोचा. She knows that I'm a working woman. She knows that I have a mind of my own. And she totally understands that. वो बहुत ही आज की लेडी है. दौर की है. हाँ. तो जब आपने बताया आपके फादर की जल्दी डेथ हो गई, एंड लुकिंग एट यू, आपकी मदर को उनका जस्टिफाइड हक, हिस्सा या कुछ भी ऐसा नहीं मिला, एंड यू हैव बीन थ्रू वट एवर इशूज़ यू हैव बीन थ्रू ग्रोइंग अप एज अ यंग गर्ल. डिड यू एवर थॉट ऑफ कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे कभी किसी से कुछ पैसे नहीं मांगने, आई हैव टू डू इट फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मेरी ज़रूरत भी है और मतलब एक इच्छा तो होती है इंडिपेंडेंट होने की. तो now that your mother is there, do you still support her? Of course, it's only me in her life. I have an elder sister, she's married, but she got married at a very young age, so she's busy with her kids and husband and all that. So it was only me, and I was always close to my mum, always. My dad knew that, my dad always used to tease. But because मैं एक joint family में रहती थी, I've seen a lot of negativity. I've always seen comparisons between my brother, between my father and the brothers he had and all that. That gave me the strength कि पहली बात तो मैं जल्दी शादी नहीं करूँगी, दूसरी बात मैं यहाँ पे हमेशा नहीं रहने वाली. हाँ, मैं नहीं रहने वाली उधर. I need to grow in life. I need to have my own career. I need to have my own mind. मैं ये typical लड़की बड़ी हो गई है, शादी करेगी, बच्चे पैदा करेगी, वो मेरा माइंडसेट था ही नहीं, लकीली. एंड व्हेन आई सॉ पीपल अराउंड मी, आई वाज वेरी श्योर कि मैं अपना खुद के पैरों पे खड़ी रहूंगी और खुद का करियर बनाऊंगी. पता नहीं था क्या, पर आई न्यू दैट कि मैं ऐसे तो नहीं रहने वाली हूँ. तो जब क्योंकि मैं आपको देख सकती हूँ, मैंने आपकी मदर को तो नहीं देखा क्योंकि मेरा काम ही देखना है, आप जानती हैं. एंड योर मदर इज़ समबडी जो अपने लिए लड़ नहीं सकती, अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती, अपने लिए बोल नहीं सकती, कोने में जाके रो ज़रूर सकती हैं, बट इतना ही कर सकती हैं. हाउ डू यू नो? दिस इज माई जॉब ना. मैं डेस्क पे नहीं हूँ, मतलब क्या काम नहीं करूँगी? But you're absolutely right. So, तो आपने बड़ी जल्दी अपनी मदर की साइड लेना, उनके लिए बोलना, उनके लिए खड़ा होना शुरू कर दिया
बिकॉज भगवान ने आपको भी तो आपकी तरह डेवलप करना था ना, हमारी सिचुएशंस हमें डेवलप करती। Correct. डू यू थिंक वो स्टैंड लेना, वो खड़े होना, उसने आपको हेल्प किया टू बिकम अ बेटर एक्टर, टू एक्सप्रेस, to understand emotions, empathy, and bring it out? Yeah, totally. You know, especially when you've not learned acting. I've never learned acting. Yes, you have not. So it is all about my past experiences or finding that emotional connect as what I felt in my childhood. I bring that out in my acting with emotions. If I have like an emotional scene or something, I have a lot of bank in my head when I have to go back to past. There are some sweet moments also, but I have more of bitter moments, I would say. And I scratch that and I get it in my acting for sure. And when it comes to my mother, yes, I learnt that at a very early age that my mother can't speak for herself. She अगर कोई 4 सुना देगा तो वो एक भी नहीं सुना पाएगी. उनका नेचर ही नहीं है. ऐसा नहीं है कि उनको बुरा लगेगा सामने वाले को. मम्मी का नेचर ही नहीं है टू गिव इट बैक. उस वक्त मम्मी को दिमाग में नहीं आता है. फिर मुझे कंप्लेन करती कि अरे वो इतना बोल कर गई, मैं कुछ बोल भी नहीं पाई. यू नो व्हाई एम आई लाइक दिस. एंड वो अंदर ही अंदर घुटती रहती थी. मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, माई फादर फॉर दैट मैटर, और हुएवर, फ्रेंड्स फॉर दैट मैटर, शी कुडंट speak up for herself. She's a very dependent woman. पहले पापा पे, then on me. And I'm very happy that she was dependent on me because भगवान बहुत कम लोगों को वो मौका देते हैं to you know serve. And आपके फादर को अल्कोहल की भी हैबिट थी? बिल्कुल नहीं. और इस तरीके से कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा और झगड़ा? स्मोकिंग की हैबिट थी. बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की हैबिट थी. तो एंड दैट इनकलकेटेड डिसलाइक फॉर यू अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मोक करता है या? Yes. So I was very clear that whoever is around me will not smoke like a chain smoker. You can smoke, you're my friends of course, but not like a chain smoker because I was against my dad smoking. He used to finish maybe 1.5 packets a day or maybe more, I don't know. So and then he got little issues also in his heart and everything, and finally फिर बोलना पड़ा था कि you know, I will stop talking to you. Mom also said, I will stop talking to you if you don't stop smoking. It was very difficult. बहुत सारे reactions आए थे. But eventually when he was kind of, you know, on a weaker side, he had to stop. So बिना कोई भी नाम लिए, because I don't like opening too much of personal life, but ये आपका conversation बहुत लोगों को help करेगा. Between 32 to 36 heartbreak या कोई cheating जैसा emotion आया था, you know, where you just felt that how did I even allowed myself to get used? ये हो कैसे गया? Why could I not see that? Yes, heartbreak तो मेरा हुआ है 2-3 बारी. And मेरा nature ऐसा है ना कि if I give in 100%. और आप लोगों के झूठ को झूठ समझते हुए भी सच मान लेती हैं. हाँ. कि ये क्यों झूठ बोलेगा कोई इस बात? Exactly. मुझे लगता था मैं बहुत ही अच्छी लड़की हूँ तो मेरे से कोई झूठ बोल ही नहीं सकता. So जब ये गलतफहमी दूर हुई? हाँ बहुत क्लियरली दूर. वो एक ही ऐसा रिलेशनशिप था जिसने आपको बदल दिया. जी. जिसने आपको लोगों पर सोच समझकर भरोसा करने का दिया कि ऐसे, मतलब मैं दोबारा ये सब मेरे साथ नहीं हो सकता. आई विल नॉट गो थ्रू दैट अगेन. बट यू नो व्हाट, sometimes bad experiences are good. No, they're important. They're very important in life because then you know what you exactly want. जब ये heartbreak हुआ and which I can sense really put you into a down spirit, मतलब आपने बहुत ज़्यादा rejection, बहुत ज़्यादा जैसे use and throw वाली feeling आप में आई. How did it happen? मतलब फिर क्या किया आपने? You know, I think I am very lucky. Let's relive. Yeah. ये हार्टब्रेक हुआ, ये झटका मिला. हार्टब्रेक तो मुझे कॉलेज में भी हुआ है. ये बताइए between 32 to 36. 32 to 36 में एक मेरा हार्टब्रेक हुआ था, बट और मुझे तो मतलब बहुत एंग्जाइटी भी हो गई थी. तब मुझे एग्जैक्टली पता चला व्हाट इज एंग्जाइटी. ट्रू. आई डिडंट नो व्हाट इज एंग्जाइटी बैक देन, बट आई डोंट नो, आई एम जस्ट. आप कौन से भगवान के पास गई? इट्स साइकिल वाइज बताइए, बिकॉज बहुत सारे लोग इस इमोशन से गुजर रहे होंगे. दे लर्न हाउ टू कोप अप आउट ऑफ इट, बिकॉज आपने किसी की मदद नहीं ली, आपने किसी साइकाइट्रिस्ट को नहीं बताया, आपने हल्का फुल्का अपनी मदर को बताया, पर आपको लगा ये सलाह तो दे नहीं सकती, सुन सकती हैं. हाँ. तो वो नहीं, रिलेशनशिप में बड़ा सलाह देती थी मुझे कि हाँ ठीक ही है, रहने दे, आगे बढ़.
ऑल दैट। वो फर्क पड़ता था उससे? फर्क पड़ता था बिकॉज आई फील जो भी मेरी मम्मी बोलती है ना मैं बहुत बिलीव करती हूँ। इफ शी सेज मुझे ये टेम्पल जाना मैं लेकर जाती हूँ, इफ शी सेज कि मुझे ये शॉपिंग करनी मैं लेकर जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी तो बोलती है एंड जब बोलती है तो मैं वो तो व्हेन शी यूज्ड टू से अबाउट लाइक दिस बॉय इज नॉट गुड, आई डोंट गेट अ गुड फीलिंग, आई यूज्ड टू लाइक ओके लीव इट। अच्छा हुआ हार्ट ब्रेक हुआ फिर कैसे कोप अप किया? पाठ किया, चैंट किया, कोई डिफरेंट छोटी छोटी रेमेडीज? म्यूजिक वाज माय रेमेडी। एंड कैसा गाना सुनते? सेल्फ ड्राइव वाज माय रेमेडी एंड आई यूज्ड टू recite हनुमान चालीसा every day and I still do. It gives me a lot of power. कृष्ण भगवान एंड हनुमान जी वो माई टू एंकर्स आई फील, एंड माई मदर ऑफ कोर्स। तब तो मेरे फादर नहीं रहे थे, बट मेरे फादर अलाउ ही नहीं करते थे बॉयज़ को घर पे आना, यू नो। ही वॉज वेरी अगेंस्ट, ही वॉज वेरी लाइक दिस मिलिट्री मैन। फोन, किसका फोन आया, क्यों आया है, हु इज दिस मैन, वाई इज ही कमिंग होम, व्हाट टाइम आर यू कमिंग बैक। सो लकीली वो सब जो स्ट्रिक्ट बिहेवियर था उनका, इट हेल्प्ड मी नॉट टू गो ऑफलाइन, you know, because when you are in this industry आप थोड़े से parties और वो सब में influence हो जाते हो, but I never got influenced. But that also became an obstacle for you to get good roles, क्योंकि आप parties और इस सब में influence नहीं हुई ज़्यादा? नहीं, मेरे हिसाब से काम को खींचता है, parties मतलब socializing से कोई फर्क नहीं पड़ता? कुछ फर्क नहीं पड़ता। Now I like socializing because I'm married, you know, I am more secure, I'm happy, so now So you think marriage को secure करने के लिए बच्चे की ज़रूरत होती है? नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। It is very on you and your partner if you really want. And I remember you telling me that you must have. But what do you think of having a child? Do you think it's important, it's relevant? I feel it to each his own. There are a lot of people who love to have kids, who wants to extend families, you know, who wants to feel that motherhood. I mean, again, to each his own. बहुत ही personal. आपका क्या मानना है? मैं अंदर से वो जो आवाज़ है उसकी वेट कर रही हूँ. Once I get that, then. और वो आवाज़ 55 में आई तो बायोलॉजिकल क्लॉक तो बंद हो जाएगी. हाँ. तो फिर क्योंकि इसको नहीं समझ में आता ना कि ये आप माना है, मैं क्या करूं. तो बस तो मैं तो भगवान से प्रे कर रही हूँ, अगर होना है तो फिर जल्दी आवाज आ जाए. एज एन एक्टर आपको कभी लगा कि जल्दी शादी कर लेना, या अभी की बात नहीं कर रही बिकॉज अभी तो पूरा ट्रेंड बदल गया. हाँ. आज से 10 साल पहले कि जल्दी शादी कर लेना या बेबी कर लेना हमारे एक्टिंग करियर में रुकावट हो जाता है, या पहले तो बहुत था ऐसा. ऑफ कोर्स पहले तो आप रिलेशनशिप में हो वो भी रुकावट आ जाती थी कि अरे शी इज ऑलरेडी विद समबडी एंड ऑल दैट. बट अब ट्रेंड बहुत ही चेंज हो गया है, विच इज very good, that you can be a mother at any age, you can have a relationship, you can be open about your relationship. आपके करियर को कोई स्टॉप नहीं कर सकता. So it's a good evolvement I feel in the industry. एंड जब मैं इंडस्ट्री के लोगों को बहुत पास से देखती हूँ who are in committed relationships, who are also married, and I'm talking about people who have like big guys and girls of the system. मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि it's okay to be married to somebody and have a fling. It is okay to be in love and yet explore outside. आपने ऐसा देखा आसपास? आप इनफिडेलिटी को, या अच्छा ठीक है इमोशनल रिलेशनशिप गलत है पर फिजिकल रिलेशनशिप गलत नहीं है, क्या ओपिनियन है आपका? मेरे लिए इमोशनल चीटिंग फिजिकल चीटिंग इक्वल है. पीपल बोलते हैं ना इमोशनल चीटिंग इज मोर देन फिजिकल चीटिंग. आई डोंट बिलीव इन दिस. आई मीन जब खुद पे बीतती है तब पता चलता है कि भाई फिजिकल चीटिंग भी पेनफुल है. एंड आई डोंट कम फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट कि भाई let's have a fling, okay, I have a relationship, or being emotionally involved and loving somebody is different, and you know having like one night stands is different. No, if you want to be loyal, if your nature is to be loyal, then you better be loyal. If your nature is not to be loyal, then don't get married. अगर आप लॉयल हो और आपका पार्टनर लॉयल ना हो, I'm out. For sure. There is no explanation also. I'm out. And so will he, because he is also a man of principles. He will be out. कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करता है. नहीं, जो नहीं है वो नहीं है. I am not built only like that. And when I talk to people like that, जो इस तरह से सिचुएशन में आकर भी उनको गलत लगता है, पर उन्हें पता नहीं आता कि अब मैं क्या करूं गलत कर. जैसे आप सिगरेट अगर पी रहे हो, ये ठीक नहीं है, आपको पता है आपकी हेल्थ के लिए खराब है, आपको पता है कि एक दिन आपको छोड़नी पड़ेगी, पर आज तो मैं पी रहा हूँ. तो वैसा ही लोग रिलेशनशिप में भी करते हैं. मतलब जब तक टॉक्सिसिटी बिल्कुल जहर ना बन जाए, वेनम ना बन जाए, तब तक वो उसको उल्टी नहीं करते.
तो ये अट्रैक्शन, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप लोगों से मिलती हैं नए नए, और बड़ा लाजमी है लोगों का अट्रैक्ट होना और फिर एक्सप्रेस करना। तो ये अट्रैक्शन को कैसे हैंडल किया जाए, आप बताइए, क्योंकि लोगों को ऐसे सवाल होते हैं, मतलब दे हैव दीज क्वेश्चंस दैट आई गॉट अट्रैक्टेड, व्हाट डू आई डू नाउ? See, being attracted, complimenting somebody is a different thing, but being in your limits. नहीं, आप एक committed relationship में हो, आपको वो respect आपके partner को definitely देनी पड़ेगी. मैं तो हमेशा ना, I try to put myself in the opposite person's shoes and see how will that person feel if he would have done the same thing to me. So I feel if you're cheating and if you have already thought of chatting and getting attracted to people, then it's definitely wrong and karma will come back biting to you. Because I got married, as we spoke before, I got married late, so I have already filtered what I've क्या done. करना है और क्या नहीं करना है, हो You know, गया, it's done, सब been हो there, गया done that. है. Yeah. So now I'm crystal clear about what I want and how I want my relationship to grow. But yes, ये सब problems आती है that you get attracted to people and all that. आपको वो दिमाग में रखना पड़ेगा that you one man woman or something like that. वो it's a process. It is difficult. I totally get that. Being in our industry where you're exposed to good looks and good looks, you have to have your boundary. You have to have your principles. You have to know. You also have a partner you're representing. You know that partner has put that trust on you. It is your responsibility to give security to that person. और मैं सिर्फ मेरी इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं अदर देन माई इंडस्ट्री ऑल्सो आई एम सेइंग कोई बाउंड्री नहीं है, कोई ऐसा थप्पा नहीं कि आपने शादी कर ली है, आप अलग हो जाओ, फिर आपको जो करना है करो. पर अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं देन यू रादर डोंट वेस्ट और स्पॉइल समबडीज लाइफ, आई फील. तो ये जो टैटू है, ये आपकी हार्ट बीट है? और नहीं, ये हाँ, माई हार्ट बीट इज फॉर माई मदर. एंड नीचे आपने 6 स्टार्स बनाए हैं. हाँ, वो रीजन नहीं था कि स्टार्स, आई एम जस्ट अट्रैक्टेड टू स्टार्स. व्हेन आई एम स्क्रिबलिंग, आई स्क्रिबल स्टार्स. व्हाट इज द रीजन, डू यू नो? यस, क्यों जब हम स्टार स्क्रिबल करते हैं तो फेम इज द ओनली गोल ऑफ आवर लाइफ. मतलब हमें चमकना और हमारे बारे में अच्छी बात हो, ये हमें पसंद होता है. वी वांट टू क्रिएट कंटेंट एंड थिंग्स इन लाइफ जिसके साथ हम हमेशा जाने जाएं. तो हम अपनी रेलेवेंस को क्रिएट करने का हमारी लाइफ में पर्पस होता है. एंड 6 स्टार्स बनाया, 5 भी बना सकती थी आप, 2 भी बना सकती थी आप, 3 भी बना सकती थी. तो 5 एक लाइन में और एक अलग है. द टोटल इज 6. दैट मीन्स वीनस वैसे ही शुक्र प्रभावित हैं आप, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग प्लैनेट वीनस, पर 5 एक साथ है और एक अलग है. तो आप बिजनेस वर्ल्ड में भी बहुत अच्छा करेंगी. मुझे नहीं पता आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है. तो ये एक इनेट टैलेंट है आप में जो आपको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए. कई बार क्या होता है कि अभी मैं बिग बॉस गई थी तो उन लोगों ने 80 दिनों तक किसी दूसरे इंसान का चेहरा नहीं देखा था. आई वॉज द फर्स्ट गेस्ट टू गो इनसाइड टू मीट देम. अब तक सब प्लाज्मा पे देख रहे थे, तो उन्होंने मुझे भी कहा कि आप प्लाज्मा से करो. तो मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई नीड दैट फिजिकल टच. पहले मैंने बिग बॉस कभी नहीं देखा, कभी नहीं मतलब कभी नहीं. सेकेंडली मुझे लगता है इतने में लोगों के 12 घंटे कलेश सुनती हूँ, मैं और 2 घंटे देख लूँ तो भगवान कहेगा कि बेटा व्हाट आर यू ट्राइंग टू अट्रैक्ट. एग्जैक्टली. मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा. और जब मैं वहाँ गई तो मुझे मेरी टीम लगी रही बताने में सब कुछ. तो मैंने कहा मुझे सिर्फ नाम बताओ, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होगी क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है मैं नाम भूल जाती हूँ. तो मुझे तो मैंने कहा मुझे उतना ही याद करा दो, उतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा. बट जब मैं वहाँ गई तो लोगों ने 80 दिनों तक कुछ देखा नहीं था. तो जब आप बिग बॉस के बारे में लोगों की बात सुनते हो तो स्क्रिप्टेड है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है. कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है. वो उन्होंने वो ब्लाइंड्स नीचे किए, हाँ? वो छुपते छुपाते मुझे बिठाया, बंद किया, फिर कितनी देर बाद ब्लाइंड ओपन की. तो उन लोगों का पहला ह्यूमन एक्सपीरियंस था अमंग्स देमसेल्व्स आउटसाइड ऑफ दैट. सो और मैं तो बिल्कुल मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने वाला इंसान हूँ ना. आई वेंट एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट देम. उनके सिग्नेचर को डीकोड किया, उनकी गेम को डीकोड किया, उनके ब्रेन को डीकोड किया. सो वो दे वर ऑल लाइक यू नो लिटिल चिल्ड्रन. अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ, यू नो हाउ वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन आवरसेल्व्स. दिस ईयर्स बिग बॉस अभी वाला मतलब आई वाज जस्ट देयर. सो आई रियलाइज दिस बॉय कॉल्ड अमाल. अरमान मलिक का ब्रदर है, अनु मलिक जी की फैमिली से. करेक्ट. एंड ही इज अ कंपोजर. तो जैसे आप गुड लुकिंग होते हो ना, किसी भी फील्ड में होते हो, तो आपको लगता है यार मैं इस फील्ड में इतना गुड लुकिंग हूँ, मैं कहीं भी चल जाऊंगा. ऐसा होता नहीं है. जब आप इंडस्ट्री में आते हो तो आपको रियलिटी चेक मिलता है कि
यहाँ लुक्स की बात ही नहीं है, यहाँ Correct. किस्मत की बात है। किस्मत की बात। आपका टैलेंट जरूर है पर आपको मौका मिलना ये ईश्वर की बात है, और कई Correct. बार मौका मिलकर भी यूं खिसक जाता है हाँ. और आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ. तो दिस सिटी वर्क्स ऑन लक और दिस इंडस्ट्री वर्क्स ऑन लक, यू नो, which is so true. So Amal said that क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ, and he's a good composer and he will be a better composer with time. And I said, why would you be an average looking actor then be the best looking composer? Of course. तो बिकॉज आप सुंदर हैं और दिन भर आपको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, एंड यू हैव दैट चार्म अराउंड यू कि आदमी को मन करता है देखो, क्योंकि ये शुक्र का गुण है, आपको और देखने को मन करता है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग वीनस ट्रेट। तो ऐसे में आदमी भूल जाता है कि मेरी फिजिकल अपीयरेंस को चलाने वाली जो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ है उसको मुझे ओवरलुक नहीं करना चाहिए। मतलब दिमाग की तो कोई सीमा ही नहीं है, Actually. देयर इज नो Limit एंड ही टू नहीं, इट, ना exactly. इसका कोई दाम है और ना इसका कोई, देयर इज नथिंग, आई मीन देयर इज, इट्स एंडलेस, ये Yeah. असीम है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपका मेंटल कैलिबर है, बिकॉज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस बीइंग सो स्ट्रॉन्ग, आपने इसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं किया। Correct. क्योंकि ऐसा लगता है कि यार अगर मैं इसमें दिमाग लगाऊंगी तो फिर मेरी एक्सरसाइज छूट जाएगी, अच्छा फिर मेरा ये छूट जाएगा, फिर मेरे को ये वाले ऑडिशन पे जाना है, फिर मुझे इस वाली प्रैक्टिस पे जाना है। तो जब हम फिजिकलिटी में बहुत ज़्यादा एनग्रॉस हो जाते हैं तो ये थोड़ा एट ईज हो जाता है, क्योंकि Correct. उसको पता है मेरी सुननी तो है नहीं, हाँ. तो मैंने क्रिएट क्या करना है, Correct. उसका न्यूरॉन पैटर्न ही नहीं क्रिएट होता। बट यू आर अ वेरी शार्प, you know, woman, like you understand business and you understand nerve कि क्या बिकेगा। Correct. हो सकता है मैं बहुत अच्छा खाना ना बना सकती हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि अच्छा सांभर कैसा होगा, अच्छा केक कैसा होगा, ये मैं कर सकती हूँ। Creative. So you have that strength कि ये चीज़ चलेगी और ये चीज़ नहीं चलेगी। मेरी गट फीलिंग ना बहुत स्ट्रांग है। हाँ, और वो आप एक्सप्लोर नहीं कर रही हैं, करेक्ट। क्योंकि जब आप ये एक्सप्लोर करने लगेंगी, यू नो, फ्रॉम क्रिएटिंग गुड फूड टू क्रिएटिंग गुड ऑम्बियंस टू क्रिएट गुड प्रोडक्ट, तो जो वीनस है जो लोगों को अटका देता है, तो आई फील देयर इज सो मच ऑफ स्ट्रेंथ इन यू टू एक्सप्लोर डिफरेंट बिजनेसेस, टू समटाइम्स सी समथिंग दैट यू कैन प्रोड्यूस समथिंग, can you create something, and you can start from ad films, you can start from smaller content. I will. And this can be like a completely new narrative of creating the best looking director, Yeah. the sexiest entrepreneur, you know, And you know, their mind में थोड़ा सा switch आया है, you know, that shift has come, that I want to, other than acting also, of course that will be my forever love, but I want to create new ideas, I want to create my own setup, my own business. वो एक shift आया है, and when I had spoken to you last, you had also told me. because वो दिख रहा है, पर कई बार क्या होगा, क्योंकि बिजनेस टाइम मांगता है और मैं ये- दूंगी, मुझे कोई और प्रॉब्लम ये इंडस्ट्री भी टाइम मांगती है, पर जैसे ही आप इस आइडिया के लिए ओके हो जाती है ना कि अब ये मेरी प्रायोरिटी है, तो बाकी सब अपने आप हो जाता है, अलाइन हो जाता है। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। जब आप किसी चीज को चेज करते हो ना, तो वो आपसे हमेशा आगे जा रही होती है, क्योंकि आप चेज की एनर्जी में होते हो। Correct. लेकिन द मोमेंट आप किसी चीज को अट्रैक्ट करते हो तो आप वहीं थम जाते हो और वो चीज आपकी तरफ पुल होना शुरू हो जाती है। सो आई थिंक दैट शिफ्ट ऑफ बीइंग इनटू चेज टू अट्रैक्टिंग इज नाउ कमिंग इन यू। और जब ये एक जगह पे मैनिफेस्ट हो जाता है ना, तब ये फॉर्मूला सब जगह हिट हो जाता है। Correct. क्योंकि मैनिफेस्टेशन को तो पता नहीं कि यहाँ काम करना और यहाँ नहीं काम करना, वो तो Correct. सभी जगह काम करेगी। यूनिवर्स को भी माइंडसेट समझ में आ जाता है, और आपके 5 स्टार्स जो हैं एक लाइन में, वो भी इस चीज़ को शो करते हैं। बट क्योंकि छठा स्टार सबसे ऊपर है और सबसे बड़ा है आपके टैटू में, हाँ, देखिए, हाँ, विच रिफ्लेक्ट्स की मुझे समझ तो आ रहा है, पर मेरा ना इस इंडस्ट्री से मन नहीं भर रहा अभी। आई एम नॉट येट डन, विच इज़ फाइन, बट इफ दिस इज नॉट योर प्रायोरिटी, ऑटोमेटिकली इट विल चेज यू। और उसी में मजा है कि हमारे पास ऑप्शन आए। तो एक बार किसी ने पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा रस क्या है, व्हाट इज द बिगेस्ट किक ऑफ लाइफ, मतलब किस चीज से आपको सबसे ज्यादा किक मिलती है। तो बड़ी रिसर्च हुई, सब तरीके के साइको एनालिस्ट, और ये चीज में किक है, अफेयर में किक है, फिजिकल इंटीमेसी में किक है, पैसे में किक है, गाड़ी में किक है। सबसे बड़ी किक है ना कहने में। जिस चीज को आपको करने की इच्छा हो, आपका मन हो, और आप कहोगे ना, आपके अंदर जो प्राइड का रश आता है ना, उससे ज़्यादा किक किसी चीज़ में नहीं होती। मतलब आपका मन हो केक है और आपने कसम खाई हो कि यार मैंने मीठा नहीं खाना, मतलब यू आर डाइंग टू हैव अ बाइट एंड यू वांट टू हैव इट इन योर माउथ, से ना, मैंने सोचा था मैं नहीं खाऊंगी। वो जो पूरी रात का कॉन्फिडेंस और विल पावर का किक है, इट स्टेज द लॉन्गेस्ट। सारे नशे 2-2 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। वंस यू हैव इट, इट्स डन। पर जो ये ना का नशा है ना, ये ख़त्म नहीं होता। तो जब लोग उस जिंदगी में मुकाम पर आ जाते हैं जहाँ वो चूज कर सकें
दैट इज़ द टाइम दे कॉल देमसेल्व्स एज दे हैव अराइव्ड इन लाइफ. जब आप ज़िंदगी में चुनाव कर सको, ये करना है और ये करना चाहती हूँ पर नहीं करूँगी क्योंकि ये ठीक नहीं है, या ये मूवी आ तो रही है पर मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं करूँगी. तो जब आप में चूजिंग की पावर आ जाती है, इज़ वेयर यू एंजॉय, एंड दैट्स द बिगेस्ट किक ऑफ. Correct. तो वो तब And I got that power after Scoop. I got that power where I felt that this role is not for me, और मैंने वो मना किया भी है. और आपको बाद में रिग्रेट भी नहीं हुआ, नहीं हुआ. यू रियलाइज कि दिस इज समथिंग I don't see myself. या कि मैंने नहीं करना, अब चाहे ज़रूरत हो नहीं हो, मैंने जी, नहीं करना. जी. और क्योंकि आप इतनी इंडिपेंडेंट रही हैं, आप अपने हस्बैंड से पैसे भी नहीं लेती होंगी. मेरे नेचर में ही नहीं है, बट ऑफ कोर्स आई मीन बिकॉज ही इज माय हस्बैंड, ही लव्स मी, ही डज इट फॉर श्योर, बट इट्स नॉट इन माय नेचर दैट कि आई आप विल मांग आस्क. सकें. तो जब एक आइडियल मैन के बारे में आप सोचती हैं, क्या इस तरीके की आदमी, आई मीन आई एम श्योर योर हस्बैंड मस्ट बी फार बियॉन्ड इट इन अ बेटर वे, बट ऐसे आदमी की कभी इच्छा रही कि यार इसको समझ होना चाहिए मुझे क्या चाहिए, मतलब मेरे को, मैं बोलूं क्यों, इसको मालूम ही होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए. अ मैन शुड ऑलवेज बी पैम्परिंग टुवर्ड्स But he is too smart. He exactly knows what I want. या एंड देन ही मेक श्योर ही गेट्स इट Yeah. फॉर यू. दिखाता नहीं है, पोकर फेस है, बिकॉज पोकर बहुत अच्छा खेलता है, दिखाता नहीं है, बट ही नोज के आई लव दिस एंड ही गेट्स इट फॉर मी. So, and isn't that a feeling of great happiness and a Yes. feeling of being in love and all that? Yes. तो आपको हनुमान चालीसा पूरा याद है? पूरा. एक बार बोलेंगी, फिर then I'll have a little gift from हनुमान जी from you. Wow. From हनुमान जी, like straight. मुझे बोला गया है कि पहले आप हनुमान जी को याद करने से पहले आपको जय श्री राम 3 बार बोलना चाहिए. Done. जय श्री राम, जय श्री राम, जय क्योंकि श्री राम. उसके मुझे आई वांट टू नो फ्रॉम यू, क्योंकि हनुमान जी राम जी की बहुत सुनते हैं, श्री राम जी को पहले याद करते हैं, तो जो हनुमान जी का पूरा फोकस होता है वो आपके ऊपर आ जाता है, बिकॉज यू आर सेइंग राम जी's नेम फर्स्ट. बट इज इट ट्रू? In this world you love your mother the most. Yes. I love my parents and my daughter the most, but my daughter is my weakness क्योंकि छोटी है और जी. आपने पाला है उसको. हम दोनों बड़े हुए हैं साथ में, 20 साल के बच्चे ने शुरू किया यहाँ से पालना. तो अगर किसी को, मुझे राइट वर्ड इज, अगर किसी को मुझे इम्प्रेस करना हो या उसको लगे कि मैं उसकी काम की हूँ और आई कैन बी यू नो सम ऑफ सम यूज टू देम, दे एग्जैक्टली नो वेयर माई वीकनेस इज, दैट इज माई डॉटर. तो अगर कोई मेरी बेटी का बहुत ध्यान रख ले या मेरी बेटी का बहुत ख्याल रख ले, तो मेरे लिए वो इंसान इज लाइक, बोल सही ये काम हो जाएगा, जस्ट से इट विल बी डन. हनुमान जी तो और प्योर भाव से कर रहे होंगे क्योंकि इट इज अनकंडीशनल लव दैट ही हैव फॉर श्री राम. तो जब उनको लगता है यार कोई मेरे भगवान को और मेरे प्रभु को याद कर रहा है, तो मैं अपने प्रभु को क्यों तंग करूं उनका काम करने के लिए, मैं ही कर देता हूं ना, उनको मैं क्यों तंग करूं. आई मीन ही इज रिमेम्बरिंग समबडी आई लव द मोस्ट, मेरे लिए तू ही सब कुछ है, अब बता मुझे क्या करना है तेरे लिए. सो रामदूत अतुलित बलधामा, कि मैं तो उनका दूत हूँ, अगर आप उनको याद कर रहे हो तो मैंने ही आना है पहले चिट्ठी लेने के लिए. Hi, I love Hanuman ji. I just love him. Then you see how much he loves you once you recite Hanuman Chalisa for us. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांदे मूंछ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विधावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रस्या, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असु सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जीवाय, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, रघुपति की नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाई, सहज बदन तुम रोजस गावे, असकहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सही तहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाँते, कभी कुबित कहीं सके कहाँते, तुम उपकार सुगमहि किन्ना, राम में लाए राजपद दिन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, ले लियो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मिली मुकमाई, जल्दी लांगे गए श्रद्धनाए, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सन्ना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जुलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोय अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगद उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौनिधि की दाता, अजबर दिन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई,
और देवता चितना धरई, हनुमन से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शतबार पाठ कर कोई, छुट्टी बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हुई सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मोडेरा। श्री हनुमान श्री हनुमान चालीसा संपूर्ण। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, ये राम नहीं आता लखन मुझे। सीता सहित हृदय बसे सुरभूप। वाओ, ये देखिए हनुमान जी ने क्या भेजा है आपके लिए, खोल के दिखाइए, हमें भी पता चले। oh my god, I'm so excited and I love the way you put that red dhaga. Yeah, it's Molly. Molly, It has to bring the endless energy and love. oh my god, wow, so pretty. I think I'm going to start crying. I love it. This is Oh my this is God. what Arna, my daughter, sent it for you. And आपने God. कहा कि आप हनुमान चालीसा I swear, I love Hanuman ji and I feel so much connect with him, you know. Well, he has come on your lap Thank in you. your life. Thank you, thank you. Oh God. I'm, this is his way of coming to you. I wasn't expecting this. I wasn't expecting this. I just told her that give something nice for Karishma that she has to love. And she said, okay mom, don't open. तो ये खुला भी नहीं है. Oh. ये ऐसे ही आया है courier से. Nobody opened, nobody knew. And all she told me is that you have to give it to her, and this is what it is. Wow. I love it. I genuinely, this is like my best gift ever. Well, and he came exactly after Hanuman Chalisa to you. तो आपकी आज तक की जितनी हनुमान चालीसा थी सब सिद्ध हो गई. Wow. मैं मतलब ना Pinterest में जा जाके ऐसे हनुमान जी के आर्ट देखती थी because I love art, you know, in a silver form actually, and I don't know, I can't express. It's very beautiful. Thank you. It is visible, and I just hope he brings more power, more luck, more fame. क्योंकि ये अष्ट सिद्धि भी देते हैं और नवनिधि भी देते हैं. So he is the one who gives us power and prosperity in life. Oh, wow. ये इनको blessing है. और सीता माता को इनका आशीर्वाद था. सीता माता सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने पूछा ये क्या कर रही हैं आप? तो उन्होंने कहा मैं सिंदूर लगा रही. तो कहा इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए, श्री राम की लंबी उम्र के लिए मांग भरी जाती है. तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे भी दीजिए. इन्होंने सिर से पैर तक डाल दिया कि अगर इतना सा लगाने से प्रभु श्री राम की लंबी उम्र होती है तो मैं पूरा सिंदूर लगा लूंगा. इसीलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है. ओह, इसलिए हम उन्हें सिंदूर चढ़ाते हैं कि इतनी आपको खुशी है श्री राम से. And I'm so happy that he has come to your life in your lap, saying that I belong here. Oh my God, thank you, thank you. जैसे आपकी माँ है, ये आपके मामा हैं, तो वो रिश्ता बना लीजिए कि आप मेरी डबल माँ हैं. माँ, oh yeah. You know, तो आप इसका ख्याल रखिएगा कि मेरी माँ का नहीं, मेरी दो माँ का फर्ज निभाइएगा. जी. So with this love and Thank this you. prayer for you that may Thank you you. keep growing in every way and you. evolving in every way and achieving what you're born to achieve. और हनुमान जी वो कृपा करें आप पर हर समय कि ये अचीव हो. आज आप अंजनी लग रही हैं उनको आपके लिए. It is with the love that you're holding. Oh, I love it. This is unbelievable. It's my best day. I love it. Thank you very much. No, my pleasure. You know, I feel जब मैंने किधर तो पढ़ा था that when you feel that immense connect with your Almighty or your guide or your guru, automatically tears flow. You have no idea that this is exactly what I say. I was telling it to a friend last night. I have this great sudden strong emotion for Balaji. तो मैं बालाजी टेम्पल गई पहली बार. तो हमारे साथ IPS ऑफिसर थे जो दर्शन करा रहे थे, तिरुपति बालाजी. और 5 मिनट के लिए वो ब्रेक दर्शन हुए. हालांकि वो VIP दर्शन होते पर आप देख भी नहीं पाते. Exactly. मैं इतना गुस्सा हुई. एंगर विद गॉड इज एन अनहर्ड ऑफ इमोशन. मैं इतना गुस्सा हुई कि मैं बाल तोड़कर वहाँ पे गिरा कर आ गई. ऐसे अगली बार आप तब बुलाइएगा जब आपके पास समय होगा, नहीं तो मैं अपने घर पर ही आपको याद कर लूँगी. आप यहीं ठीक, मैं वहीं ठीक. I got so angry that I couldn't even look at you. Why would you do that to me? Exactly. 2 महीने बाद मेरी फ्रेंड का कॉल आया. She stays in हैदराबाद कि आप हमारी फैमिली के साथ में आ रही हैं और हमारी सेवा है पूरा दिन बालाजी की. मैंने कहा कितने घंटे की सेवा है?
तो बोला 7-8 घंटा पूरा दिन जितनी देर रुकना हो रुकिए। Wow. आई सेड मैं अकेली नहीं आऊंगी, आरना माई डॉटर विल कम। शी सेड मैं अभी बात करती हूँ। बाय द टाइम आई इवन सेड येस द टिकट्स रीच्ड मी एंड शी हैड नो बिजनेस टू डू माई टिकट्स, बट उसके अंदर क्या भाव आया। 7.5 hours आई वॉज इन टेम्पल प्रेमिसेस, डिड 4 सेवास ऑफ बालाजी। मतलब मैं बिल्कुल रज गई ना, जब मुझे लगा मैं गिर जाऊंगी, क्योंकि सोई नहीं। सुप्रभातम के लिए आपको सुबह सुबह 2 बजे उठ के नहा कर जाना पड़ता है, और उसके बाद थोमल सेवा के बाद तक मैं मंदिर प्रेमिसेस में थी। तो मुझे लगा मैं गिर जाऊंगी, तब मेरे वो दर्शन खत्म हुए। आई ओवरवेल्म, मतलब मैं लेटी नहीं रोते रोते कि ऐसे भी कोई बात करता है, ये बात खत्म नहीं हुई। देयर इज दिस आर्टिस्ट कॉल्ड रमेश जॉर्ज जाला, आई एम फॉन्ड ऑफ हिज वर्क। वो भगवान अलग अलग तरीके से बनाता है। ही केम टू माई होम and he's a friend, but I buy his art. It's not that he has ever gifted me anything. He came to my home. He says मुझको सपने में आया कि मेरे को बालाजी का हुंडी गिफ्ट मिला। उसको एक्चुअली हुंडी गिफ्ट मिला जिसमें हम पैसे डालते हैं ना, बिकॉज वो मंदिर में ही पेंट करता है, ही स्टेज इन तिरुपति। मुझे सपने में आया कि मुझे ये हुंडी आपको देना है। तो मैंने कहा मैं ऐसे कैसे ले जाऊंगा मैडम, मैं बालाजी पे हुंडी पे लक्ष्मी माता बनाकर आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। आई सेड व्हाट डिड यू डू? ही सेज हुंडी पर माँ लक्ष्मी, इट इज इन माई ऑफिस, right in front of my eye. I got the hundi framed of Balaji with her hundi number 159, painted माँ लक्ष्मी on it, bang opposite to me कि अच्छा तुझे यही तो था ना कि तू बार बार नहीं आ सकती है, और बता क्या करना है। Oh my God. So we think भगवान कहाँ बोलता है, और मुझे लगता है वो चुप कब होते हैं, वो सिर्फ बोल रहे होते हैं, हम सुन नहीं रहते। मतलब we don't listen, he always is talking. मतलब इट्स अनहर्ड ऑफ, कोई मानेगा भी नहीं। इफ आई शेयर पिक्चर विथ यू विच आई विल, इट्स लाइक अ बिग हुंडी जो कभी नोटों से भरी होगी, वो खाली होकर दे डोंट रीयूज इट, इट केम टू मी विथ माँ लक्ष्मी पेंटेड ऑन इट। और हम कहते हैं भगवान कहाँ बोलते हैं। और ये देखिए, किसी को नहीं पता था आप हनुमान चालीसा बोलेंगी, हम ना आपको पता था कोई क्वेश्चन, ना मुझे पता था मैं क्या बात करूँगी। आउट ऑफ नोवेयर यू रिसाइटेड हनुमान चालीसा। आई सेड ओपन द बॉक्स एंड देयर वी सी हनुमान जी। और हम बोलते हैं लोग कहाँ, भगवान कहाँ बोलते हैं? Correct. भगवान तो बात ही नहीं करते, और कैसे बात करेंगे? मतलब वो चिल्ला रहे हैं और हम सुन नहीं रहे हैं। Correct. एंड दैट इमोशन जस्ट सेड दैट he was listening to you all through and through. Yeah. How beautiful that can Yeah, be. it is very beautiful. And I'm so happy that this little connect could happen in front of my eyes and I could witness it. Yeah. And may this brings a big and beautiful and powerful change in your life. Thank you. This you. is I what need- my thank prayer you. is towards you. Thank you so much. Thank you for being Thank here. you. Thank you. Thank you for calling me and inviting me. No, it's my pleasure. Thank you. Pleasure.